وہ سب بیچارے تھکے مادے، کب کھایا کب سویا، تو تھوڑی سی آپ یہ اس کی آواز ٹھیک ٹھاک رہتی ہے تو بیچارے پہ مہربانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی شیخ عطاء الرحمن سلفی صاحب اپنے انداز میں خطاب فرما رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنے خطاب کے درمیان قوم کی خوابیدہ روح کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مثالیں دی کہ جیسے بھارت کی سرزمین پر سکھ بہت کم تعداد میں ہیں، بہت کم سنکھیا میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جاگرکتا ہے، ان کے اندر بیداری ہے۔ کبھی بھی کوئی پگڑی باندھا ہوا سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ وہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی قوم کا اور کسی بھی جماعت کا مضبوط ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، بلکہ اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ وہ کوالٹی پہ توجہ دے۔ اگر اس کے پاس ہنر ہے، اگر اس کے ہاتھوں میں ہنر ہے، علم کی طاقت ہے، اگر اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اگر اس کو یہ احساس ہے کہ کسی بھی بیدار مغز قوم کے لیے کیا ضروری ہے، تب جا کر کے آنے والا فیوچر اور اس کا بھوش بہتر ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے، خاص طور سے مسلم قوم کا، کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صرف مغلیہ سلطنت کا جو زوال اس ملک کے اندر آیا وہ کوئی 4 5 سال 10 سال 50 سال کی داستان نہیں ہے، بلکہ وہ صدیوں کی داستان ہے۔ وہ ایسے مکمل ہوا کہ جب انگریز صبح میں اپنا کام کاج کر کے جب فارغ ہو جاتے تھے، تب مسلم بادشاہوں کی صبح ہوتی تھی، تب وہ ناشتہ کرتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے غفلت کے شکار ہوئے، انگریزوں نے ان کی غفلت کو بھاپا اور اپنی مضبوطی کا سکہ جماتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ وہ بیدار قوم ہے۔ میں اس ضمن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، تاریخ کے پنوں کو پلٹیے، صرف بازاروں پرچے پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف لوگوں کی قصہ اور کہانیاں سننے سے نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو یہ بچے بتائیں گے کہ جب اندلس کی سرزمین پر، وہ سرزمین جہاں پر مسلمانوں کے قرآن کی آیتیں سنائی دیتی تھی، وہ سرزمین جہاں مسلمانوں کی عظمت و جلال کے نشان تھے، وہ سرزمین جہاں پہ مسلمانوں نے کبھی اپنی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، وہ سرزمین جہاں پر مسلمانوں کی اذانوں کی صدائیں کفر کے سینے پر بجلی بن کر کے گرتی تھی، وہ سرزمین جہاں پر مسلمانوں کی عظمت و جلال کے گیت گائے جاتے تھے، وہ سرزمین جہاں پر مسلمانوں کی شان و شوکت کے نشان تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب مسلمان اپنے باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پر عیش کرنے لگے، جب وہ یہ بھول گئے کہ کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر ایک جابر قوم مسلط ہوئی، عیسائیوں کا تسلط ہوا، اور ہوا یہ کہ صاحب وہ دھیرے دھیرے اس پہ قابض ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ مسلمانوں نے عیسائیوں سے حکومت چھینی تھی، عیسائیوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں تو ہماری رہی تہی طاقت ختم ہو جائے گی۔ بالآخر اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، محنت کی، لڑائیاں نہیں کی، ٹکراؤ کی صورت نہیں نکالی، اور آخر وقت یہ آیا کہ اس طریقے سے وہ قابض ہو گئے، سسٹم پہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اور حالات یہ پیدا ہوئے کہ دھیرے دھیرے اندلس کی سرزمین پہ مسلمانوں کی ساکھ ختم ہو گئی۔ ایک وقت آیا، مورخین نے لکھا ہے کہ جس سرزمین پر مسلمانوں کی عظمت و جلال کی علامتیں تھی، جس سرزمین کا نام سن کر کفر کی پیشانی پہ پسینہ نکلنے لگتا تھا، اس سرزمین کا یہ حال ہوا کہ 500 سال تک وہاں اذان کی آواز نہیں گونجی گئی۔ 2004 میں پہلی مرتبہ وہاں پہ اذان کی آواز سنی گئی۔ میں اس کو ہندوستان کے تناظر میں ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہوں۔ اہل علم کی محفل ہے، اہل فکر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب الرائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو، ہندوستان کی سرزمین پر بھی لگ بھگ وہی صورتحال ہے۔ آپ صرف جذبات میں آنے کے بجائے اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے۔ الفلاح تعلیمی الخیریہ جیسے ادارے کو غنیمت جانیے۔ جب کوئی کام کسی بھی قوم اور ملت کے اندر نیا ہوتا ہے، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کیل کانٹا نکالتے ہیں، لیکن جب دھیرے دھیرے وہی چیز آگے چل نکلتی ہے، تب لوگوں کو اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
स्वामी विवेकानंद ने एक जुमला कहा था, हिंदुस्तान का एक महापुरुष है, उसने कहा था जब किसी कौम और समाज का एक व्यक्ति भी अगर आत्मविश्वास के साथ, बेहतरीन विचार के साथ अगर कोई काम की शुरुआत करता है तो मेरा यकीन कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि उस समाज के अंदर क्रांति की लहर पैदा हो जाएगी। और यहाँ पर जबल फलाह तालीमी अल खैरिया में सिर्फ असलम हक्कानी नहीं है, अब्दुल अजीज हक्कानी नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं। आज जब एक ही साथ में निकले थे कुछ लोग, लेकिन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब कई लोग मौजूद है कमेटी के अंदर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तजम्मुल साहब का नाम लिया, अफसर साहब का नाम लिया और एक साहब का नाम लिया, जब ये सारे लोग मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी सरजमीन पर, पूरे इलाके में तालीम का एक ऐसा चिराग रोशन होगा कि दुनिया याद रखेगी कि अल फलाह तालीमी अल खैरिया के बहादुरों ने क्या काम अंजाम दिया है। इसके लिए ये जरूरी है कि अगर आप अच्छा कर नहीं सकते हैं, अच्छा दे नहीं सकते हैं, किसी इदारे को नवाज नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपनी जबान पे ताला लगा करके रखिए। जो बात आपको समझ में आज नहीं आ रही है, कल समझ में आएगी कि ये लोग कितने मुखलिस थे और कितनी जिंदा दिली के साथ काम कर रहे हैं। तालीमी इदारों के लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि हम ऐसे बच्चा पैदा कर दे, ऐसे उलमा और मुदर्रिसीन को पैदा कर दे कि वो इमामत और खताबत की जिम्मेदारी संभाले, आपके सामने पूरी जिंदगी ज़कात और फित्रे के लिए भीख मांगते रहें और आप उन्हें हकीर नजरों से देखें। बल्कि जरूरी यह है कि उन्हीं उलमा और फजला को जहां दीन की तालीम दीजिए, वहीं दुनियावी तालीम से ऐसा रास्ता कीजिए कि किसी एसपी की आंख में आंख डाल के बात कर सके, किसी डीएम की आंख में आंख डाल के बात कर सके, और मंत्री के सामने बैठे तो कहे कि मैं कौन हूं और किस समाज से आया हूं। ये भारत है, ये स्वतंत्र मुल्क है, यहां पे लोगों की ताकत और लोगों की अजमत का एहसास होता है। अगर आपकी बड़ी ताकत इस पूरे इलाके में है तो अपनी जाहो जलाल और अपनी ताकत का एहसास दिलाइए, तब आपकी आवाज मोतबर होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और भी बहुत सारी बातें हैं। किसी शायर ने कहा था कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। यह उस वक्त होगा जब तालीम से आप जोड़ेंगे, इत्तेहाद और इत्तफाक का माहौल पैदा करेंगे, इस तरह के इदारे को आगे बढ़ाएंगे खूबसूरती के साथ, तब यह महसूस होगा कि हमने अपने इलाके में कैसा इदारा बनाया है और कैसे प्रोडक्ट को तैयार किया है। अब आइए, ये मेरे कुछ जज्बात, एहसासात भरे अल्फाज थे जो आपके बीच रखे गए। मैं एक मर्तबा फिर जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, मैं उन तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। हमारे बावकार उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी को छोड़ के आपके बीच अल्लाह के नाम पर, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नाम पर आपके यहाँ जमा हुए हैं। आप उन्हें सुन करके जाइए और दामने दिल में बहुत सारी बातें समेट करके जाइए। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं कुछ पेश कर दूं, तो मैं ये चाहता हूँ, ये यूट्यूबर वगैरह वाले जो है, जो बार बार अप डाउन, बल्कि ये कहिए कि रुकू और सुजूद की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं कि भाई जमील अख्तर शफीक खड़ा हुआ है तो कुछ बोलेगा। ये को याद रखना है, जो भी इस्लामिक है उसको याद रखना है। ये आपके लोगों के बीच की आवाज को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं। बल्कि मैं हैरत ज़दा हूं कि इस इलाके में जहां पर तालीम का बहुत रिवाज, उस लेवल का रिवाज नहीं है, वहां पे कम से कम हमारे ये इस्लामिक यूट्यूबर लोग हैं जो आपकी आवाज को, अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। और आज के मॉडर्न दौर में ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जब हम अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तो फिर यही होगा कि यूट्यूब जब खोलिएगा तो कोई हरी पगड़ी का आदमी नाच रहा होगा, कोई दाढ़ी वाला आदमी झूम रहा होगा, कभी ये होगा कि कोई अपने बुजुर्गों की दास्तान सुनाएगा, कोई मज़ारों की दास्तान सुनाएगा, कोई ये बताएगा कि बुजुर्ग ने फूंक मारा तो उसकी सारी बीमारी दूर हो गई, कोई ये बताएगा कि बुजुर्ग ने देखा तो मुकद्दर बदल गया, कोई बोलेगा कि बुजुर्ग ने देखा तो ये हो गया वो हो गया। बल्कि ये कहिए कि मुकद्दर का सर्टिफिकेट लोग बांटते हुए फिरेंगे। अगर ये चाहते हैं कि वो सारी दुकानें बंद हो जाए फिरका परस्तों के और बातिल परस्तों के, तो ये जरूरी है कि इस तरह के यूट्यूब चैनल लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। मैं ये चाहता हूं, जैसा कि मौलाना अतारुमान सलफी साहब ने खिताब फरमाया, उस हवाले से 2-3 शेर में पढ़ता हूं ताकि मैं कुछ अपने हिस्से का काम कर सकूं। मुलाहिजा फरमाइएगा। बातिलों के वास्ते, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आलमगीर ताबिश तैमी साहब के खिताब के जस्ट बाद
इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का प्रोग्राम भी होगा। जिन बच्चों ने यहाँ से फरागत हासिल की है उन बच्चों के सरों पे दस्तार बंदी का रूहानी मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा, वो भी आप देख करके जाएं, आंखों में कैद करके जाएं। उसके बाद पहले आलमगीर ताबिश तैमी साहब का खिताब होगा, उसके बाद फिर ये बच्चों को नवाजा जाएगा। मुलाहिजा फरमाइएगा। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। कम से कम मैंने चीखा तो एक फ़ायदा ये हुआ कि असलम हक्कानी साहब यहाँ पे आ गए। कभी कभी होता है कि मुंतज़िमीन जलसा बेचारे इतनी खिदमत करने पे लगते हैं मेहमानों के कि वो खुद बेचारे वक्त नहीं दे पाते हैं। बहरहाल आइए इनकी मौजूदगी में कुछ शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। और एक पैगाम मुलाहिजा फरमाइएगा। बाप दादा की कमाई पे नहीं इतराना कभी, कौम के हर फैद को, कौम के हर फैद को खुददार होना चाहिए। कौम के हर फैद को खुददार होना चाहिए। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक। अब तलक तुमको समंदर, अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए। अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। हजरात, ये मेरे हिस्से का कुछ काम था जो मैं ज़हमत के लिए बीच में आ गया। अब आइए मैं आपके बीच हिंदुस्तान की एक मशहूर इल्मी दानिशगाह कलकत्ता की सरजमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाली शख्सियत, एक इल्मी शख्सियत, हमारे बड़े भाई और इंतहाई मोहतरम। इन जलसों का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे भूले बिसरे चेहरे, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग, बेपनाह खुलूस अपने सीने में मुजज़न रखने वाले लोग, जिन्हें दूर से देख करके सिर्फ हसरतें अंगड़ाइयाँ लेती हैं, उन्हें कम से कम मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाता है। बरसों पहले इसी तरीके के प्रोग्राम में कहीं मुलाकात हुई थी, फिर से एक मरतबा मुलाकात हो रही है। इंतहाई इल्मी शख्सियत जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पे कुदरत रखती है, अरबी ज़बान हो, उर्दू ज़बान हो और अंग्रेज़ी ज़बान हो और साथ में शायरी जैसा मुश्किल फ़न हो, बहुत सारी खूबियों के हामिल हमारे बड़े भाई जनाब आलमगीर ताबिश तैमी साहब
अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर बेपनाह सलाहियतें रखते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ असलम हक्कानी साहब और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपनी खुलूस की जंजीर में कैद करके यहाँ बुला लिया है। ये उन्हीं का हिस्सा हो सकता है, वरना इन लोगों की मसरूफियात को मैं जानता हूँ जो तदरीसी और इल्मी शोबों से ताल्लुक रखते हैं। मैं 4 मिसरे से उन्हें आवाज देता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, अगर वो चीन की दीवार नहीं है, लोगों के खड़ा होने का मंजर है, तो आकर के यहाँ पे बैठ जाइए। अभी कुछ देर पहले एक साहब को देखा, इत्तफाक से उस कोने से उन्होंने सिगरेट सुलगाई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीच में आके उन्होंने एक लंबा सा कश लिया है और पता नहीं हर फिक्र को धुएं में उड़ा रहे थे या क्या कर रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रोग्राम में जा रहे हैं या किसी कहवा खाने में जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम और दीनी महफिलों का अपना एक ज़ाब्ता होता है। मेरे दोस्तों, इसकी हुर्मत का पासो लिहाज रखना और ये समझ जाना कि जब उलमाए कराम के सामने जा रहे हैं, दीनी महफिलों में जा रहे हैं, ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां फरिश्ते अपना हाला बनाए हुए होते हैं, तो कम से कम उसके तकद्दुस और तशक्कुस का लिहाज रखना इंतहाई जरूरी है। मैं आइए 4 मिसरे से, ये भाई मैं अगर सब लोगों का नाम लेकर के बुलाऊंगा तो आप आएंगे? ये जो लोग खड़े हैं यूं खड़े होकर के जैसे कोई आदमी सर्कस देख रहा हो। साहब, मैं उर्दू ही में बोल रहा हूं, बंगला उतनी ठेठ मेरी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि भाई गुड्डू भाई, साबिर भाई और वो बरकतुल्ला भाई, तो फलाने भाई आ जाइए, बैठ जाइए, खड़े खड़े रहिएगा, पैर में प्रॉब्लम हो जाएगा। सुबह में जब अपनी बीवी से मुलाकात होगी, लेंगड़ाते हुए नजर आइएगा, कहेगी कि अजी तुम तो कह रहे थे कि जलसा में हम गए थे, लेकिन पैरवा कहां से तोड़वा के लेकर के चले आए हो, तब क्या जवाब दोगे जरा सोचो। इसलिए मैं आपके हिस्से का काम, अगर आप चाहते हैं कि जलसे में से जाइए तो बरकत लेके जाइए और बीवी आपकी आरती उतारे बल्कि मोहब्बत से देखे, तो मेरा ये मशवरा मानिए और जगह लेकर के बैठ जाइए। बाद में जब आप जगह पूर हो जाती है और फलांगते हुए छोटे छोटे बच्चों को ठुनकियाते हुए आगे बढ़ते हो तो बड़ा बुरा लगता है। इसलिए जगह लेकर के बैठ जाइए। चाय वगैरह की हाजत है तो पी लीजिए, खाने का इंतजाम है। मुसलमान में ऐसे भी अगर बिरयानी और दूसरी चीजों का अगर इंतजाम हो तो मुसलमान को पीछे नहीं रखना चाहिए, उसके पेट का ईमान मुकम्मल मजबूत हो जाता है। लिहाजा आप वो भी काम कर सकते हैं और मजबूत होकर के जब जम के बैठिएगा तभी लोग जम करके सुनाएंगे और मैं भी आपको कुछ सुना पाऊंगा। आइए 4 मिसरा से शेख आलमगीर ताबिश तैमी साहब को आवाज दूं कि तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, तजल्ली आने वाले वक्त की राहों में भर दी है, पुराने आईनों की गर्द हमने साफ कर दी है। हमें आता है पुरखों की हर एक तारीख पढ़ लेना, परख लेते हैं गौहर को वो खुदा ने वो नजर दी है। आधा घंटा 35 मिनट के लिए आपके बीच शेख आलमगीर ताबिश तैमी साहब है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरे हमतंगोश होकर, मुतवज्जह होकर, बड़ी मोहब्बत से आप उनकी बात सुनेंगे तो बहुत फायदा होगा। मैं पर शेख आलमगीर ताबिश तैमी साहब, कलकत्ता।